Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to Allied School YouTube channel. This video is for class 4. The subject is mathematics. Dear students, I hope you have done your homework. Doing homework is very important for you, and doing homework is a good habit. You should do your homework on time, okay? Yes, today I'm going to teach you exercise 1B, and the topic is word problems. Yes, these word problems have been mentioned at pages 10 and 11. Let's get started our lesson. Yes, this is the question statement instruction for you. Read the problems carefully. ध्यान से आपने प्रॉब्लम्स को पढ़ना है. जो क्वेश्चन है उसको ध्यान से आप पढ़ेंगे, केयरफुली पढ़ेंगे. डिसाइड वेदर यू शुड ऐड और सब्ट्रैक्ट. फिर आपको फैसला करना है कि ऐड करना है या आपको सब्ट्रैक्ट करना होगा. टू सॉल्व दैम, सॉल्व करने के लिए. राइट कंप्लीट स्टेटमेंट्स, और फिर स्टेटमेंट्स भी आपने लिखने हैं साथ साथ. मतलब क्वेश्चन में आपको क्या गिवन है और क्या आपसे पूछा जा रहा है और क्या आंसर दिया जाएगा, तो ये सब आपको स्टेटमेंट की सूरत में लिखना है. ओके, इट मीन्स कि यू हैव टू मेक द डाटा. ओके, लेट्स सी क्वेश्चन 1. A factory made 64,750 jute bags on Monday and 51,060 bags more on Tuesday. How many bags were made altogether? Yes, this is the production of bags on Monday. Okay, 64,750, and this is the production of bags on Tuesday. Yes, how many bags were made altogether? It means कि you have to add, because you have to find out the total number of bags. आपको total number of bags पता करने हैं. तो simple आपको पता है, जब total आपको चाहिए होगा how many altogether bags, how many bags altogether you have to find. It means कि you have to do addition. Okay, ये आपको बात clear हो गई. तो आप डाटा मेक करेंगे. तो आप क्या कहेंगे कि bags were made on Monday. This is the statement. बैग्स मेड ऑन मंडे. यहाँ वर्ड लिखने की आप ओमिट कर दें, कोई प्रॉब्लम नहीं है. शॉर्ट में लिख दें बैग्स मेड ऑन मंडे, आगे इक्वल टू का साइन लगा के वो फिगर लिखें. ओके, देन बैग्स मेड ऑन ट्यूसडे. यस, सेकंड स्टेटमेंट विल बी बैग्स मेड ऑन ट्यूसडे. यस, 51,060. Now what is the need of the question? What is the requirement of the question? Right, how many bags were made altogether? Okay, bags were made on both days. Yes, दोनों दिनों में कितने bags तैयार हुए थे वो आपको वो बताना है. ठीक है, तो आप सिंपल क्या करेंगे, you have to add. First write this figure 64,750, then you have to write 51,060 and add both figures. Yes, अब यहाँ पे सिंपली आपको एडिशन करनी है. एडिशन आप करना जानते हैं. आंसर, ओके, दिस इज योर आंसर. 115,810 bags were made altogether, or you can say 1,15,810 bags were made altogether. Okay, now let's see question number 2. In an election, Mr. Kamal got 156,720 votes and Mrs Abid got 158,986 votes. Who got more votes and how many? Election conduct हुआ, मिस्टर कमाल ने इतने वोट्स हासिल किए और मिसेस आबिद ने इतने वोट्स लिए. आप बताएं कि किसने, who got more votes, ज़्यादा वोट्स किसने लिए और कितना ज़्यादा लिया उसने. ये तो हो गया लैंग्वेजेस की. ओके, अब यू नो हु गॉट मोर वर्ड्स. इट्स वेरी इजी, यू हैव टू फाइंड इट. यू कैन फाइंड इट बिकॉज greater value, you have to see the greater value. Which person has greater value? Yes, Mr. Abid has greater value. He has got more words because 158,000 here, and you can see here 156. 56 is smaller than 58.
This figure is greater than this figure. It means Mrs. Abid got more votes. ये तो बहुत सिंपल सी बात है, आप फिगर को देखिए और जो ग्रेटर वैल्यू होगा वही पर्सन जो होगा उसने ज़्यादा वोट हासिल किए हुए होंगे। पहले डाटा बनाते हैं। मिस्टर कमाल गॉट 156,720 votes, okay, and Mrs Abid got 158,986 votes, okay. Who got more votes? पहला क्वेश्चन ये है, who got more votes? आंसर सिंपल है, how many votes। दूसरी चीज ये है, how many votes he or she got more। जी, कितने votes he या she ने ज्यादा लिए हैं, ओके। नंबर 1 का आंसर देखें आप। आंसर Mrs Abid got more votes because 158,986 is greater than 156 and 720, ओके। ये तो क्लियर कर दिया मैंने आपको। अब आपको हाउ मेनी बताना है। हाउ मेनी वोट्स मिसेस आबिद, हाउ मेनी वोट्स मिसेस आबिद गॉट मोर। आप ग्रेटर वैल्यू से में से स्मॉलर वैल्यू को माइनस करेंगे। यस, अब आप माइनस करेंगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि मिसेस आबिद गॉट हाउ मेनी मोर वोट्स, ओके। यस, डिफरेंस देख सकते हैं आप यहाँ पे 6 माइनस 0 6, 8 माइनस 2 6 एंड 9 माइनस 7 2 एंड 8 माइनस 6 2। 2,266 more votes than Mr. Kamal. Mrs. Abid has 2,266 more votes than Mr. Kamal. ओके, यहाँ आपने सब्ट्रैक्शन किया। लास्ट क्वेश्चन में आपने एडिशन किया था, यहाँ आपको सब्ट्रैक्शन करना पड़ा। ओके, लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। Question number 3. A library has 46,918 books of English and 108,625 books of Urdu. What is total number of books? Very simple. Total का word ही आपको बताता है कि you have to add both figures. डाटा आप बनाएंगे, ये क्वेश्चन आपने खुद करना है, ओके। सबसे पहले आप डाटा बनाएं, बुक्स ऑफ इंग्लिश, टोटल नंबर ऑफ बुक्स ऑफ इंग्लिश लिखें, फिर टोटल नंबर ऑफ बुक्स ऑफ उर्दू लिखें, फिर टोटल नंबर ऑफ बुक्स को क्वेश्चन मार्क के साथ लिख दें, दोनों को ऐड करें और लास्ट में आपने आंसर लिख देना है कि टोटल नंबर ऑफ बुक्स, ओके, और जो आंसर आएगा वो लिख देंगे आप, ओके। कंफर्म द आंसर बिहाइंड द बुक, ओके। नंबर 4. A shopkeeper earned rupees 170,920 in 1 year. Oh, shopkeeper earned, इतने पैसे कमाए उसने एक साल में। If his expenses for the same year, expense means expenditure, इखराजात, same year were rupees 129,486, अगर वो स्पेंड करता है इतना मनी अपने एक्सपेंसेस के लिए पूरे साल में 129,486, हाउ मच मनी डिड ही सेव? यस, यू कैन सी हियर दिस इज ग्रेटर वैल्यू। अर्निंग ज़्यादा हो रही है और एक्सपेंस उसका कम हो रहा है। इट मीन्स के ही was saving, yes, he was saving. नाउ सेविंग आपको देखने के लिए क्या करना होगा? सिंपल सी चीज़ है, बताइए, एडिशन करेंगे या सब्ट्रैक्शन करेंगे? यस, एडिशन तो नहीं होगी, लग नहीं रहा कि एडिशन होगी। नो, एडिशन इज नॉट पॉसिबल हियर। यस, इफ यू वांना फाइंड आउट द सेविंग ऑफ अ शॉपकीपर, you have to subtract the expenses from the earning. Yes, आपको expenses को earning से minus करना होगा। सबसे पहले हम डाटा बनाते हैं। Earning of a shopkeeper in a year 1,70,920. Okay, his expenses in a year 1,29,486. Now, what is the requirement? His savings after a year, उसकी कितनी सेविंग्स है साल के बाद? यस, ये मालूम करना है आपको। आप क्या करेंगे? एक्सपेंसेस को अर्निंग में से माइनस कर देंगे। फर्स्ट यू राइट अर्निंग, देन यू हैव टू राइट एक्सपेंसेस, देन यू हैव टू सब्ट्रैक्ट कर लें। जो आंसर आएगा आपने उसको स्टेटमेंट में लिखना है। ही सेव्ड रुपीज डैश इन अ ईयर। क्लियर? अ शॉपकीपर सेव्ड रुपीज इन अ ईयर।
Let's see the next question. Question 5. Find the difference between the largest 4 digit number and the smallest 6 digit number. Difference हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, पहले भी हमने आपको इसके बारे में बताया है कि when you wanna find out the difference, it means you have to subtract. Okay, but first you have to know what is the largest 4 digit number and what is the smallest 6 digit number. Okay, make the data. The largest 4 digit number is 9,999. Okay, and smallest 6 digit number, yes, 100,000. 100,000. 1 lakh. Okay, which value is greater? This value is greater and this is smaller than this one. Okay, it means that you have to subtract from smaller value from greater value. Difference of both numbers you have to calculate. आपको difference निकालना है दोनों numbers का. First you copy the greater value. Okay, 1 lakh. Then you copy a smaller value. Then you have to subtract 9,999 from 1 lakh. Okay, I think you can do it. Okay, on your own. Difference of both numbers is dash. Okay, can you do it? Yes. Next question. Question 6. A man bought a house for rupees 956,780. He sold it for 120,000 less than the cost price. How much did he sell the house for? एक आदमी ने घर खरीदा है, उसकी कीमत है 9,56,780. फिर वो सोल्ड आउट करता है जो उसकी कॉस्ट प्राइस है उससे इतने कम पैसे पे, यानी कि जो कॉस्ट प्राइस है वो सोल्ड इट फॉर 1,20,000. कम पैसों पे वो इसको क्या कर देता है? सोल्ड इट करता है, बेच देता है. 1,20,000 कम कीमत पे वो अपना कॉस्ट प्राइस से कम कीमत पर वो इसको घर को अपने बेच देता है. हाउ मच डिड ही सेल द हाउस फॉर? अब एक्चुअल अमाउंट आपको निकालनी है कि उसने अपने हाउस को कितने पैसों में बेचा. सेलिंग प्राइस इट मींस. ओके, ये तो उसका डिफरेंस वैल्यू है कि जो जिसमें उसने इतने कम वैल्यू में, इतने कम पैसों में जो एक्चुअल कॉस्ट प्राइस थी, ये आपको नजर आ रहा है कि कॉस्ट प्राइस है. बाइंग अमाउंट, बाइंग कॉस्ट और कॉस्ट प्राइस. ओके, बोथ आर सेम थिंग्स. और ये 1,20,000 ये वो अमाउंट है जो उसने इतने कम पैसों में सेल किया है. इतना डिफरेंस आया है बेचते वक्त. इट मीन्स कि उसने लॉस किया है घर को बेचने में. ओके, मेक द डाटा. नंबर 1 कॉस्ट प्राइस ऑफ द हाउस पहले लिखेंगे आप, फिर आप लिखेंगे अमाउंट ही सोल्ड इट लेस देन द कॉस्ट प्राइस. जो कॉस्ट प्राइस से कितने कम पैसों पे, कितनी अमाउंट है जो कॉस्ट प्राइस से कम है, जिस पे उसने डिफरेंस पे उसने घर को बेचा है. ओके, उसने 1,20,000 कम कीमत पर उसने अपने घर को सोल्ड आउट किया. 1,20,000. नाउ सेलिंग प्राइस ऑफ द हाउस. अब एक्चुअल सेलिंग प्राइस हुई क्या? तो आप यानी कि इस यहाँ पे क्या करेंगे? यू हैव टू सब्ट्रैक्ट 1,20,000 फ्रॉम दिस वैल्यू. ओके, आफ्टर दैट you know what is the actual selling price of the house. Okay, first you copy 9,56,780, then you have to copy 1,20,000. Okay, अब you have to subtract कर देंगे 0, 8, 7, 6 and 3 and 8. Okay, सिंपल सब्ट्रैक्शन है. आपने सब्ट्रैक्ट करने के बाद स्टेटमेंट फिर लिखना है आंसर का. ही सोल्ड द हाउस फॉर डैश रुपीज. ओके, क्लियर? सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. इट विल बी लास्ट. क्वेश्चन 7. A school in the village needs 400,000.
और 4 लाख फॉर अ न्यू बिल्डिंग। एक स्कूल है गांव में जिसको तामीर करना है, बनाना है, बिल्ड करना है, न्यू बिल्डिंग है, उसको कितने पैसों की ज़रूरत है? 400,000 की, 4 lakhs की। मिस्टर अब्दुल्ला डोनेटेड रुपीज़ 1,50,000, 150,000, 1,50,000 वो है, वो डोनेट कर देते हैं, यानी कि ऐसे ही दे देते हैं उनको। हाउ मच मोर मनी मस्ट बी कलेक्टेड? वेरी सिंपल, बिकॉज it needs your mental maths. Okay, here mental maths. A school in the village needs 4 lakhs, okay, for a new building, and Mr. Abdullah donated 1,50,000. How much more money must be collected? कितने पैसे और जमा करने होंगे, कितने पैसे और चाहिए होंगे स्कूल न्यू बिल्डिंग को कंस्ट्रक्ट करने के लिए? आप इस जो नीड है और जो मिले हैं, डोनेशन आया है उनके पास, उसमें से आप लेस कर दें तो आपको डिफरेंस पता चल जाएगा। मेंटली आप ये कर सकते हैं। 4 लाख में से अगर 1,50,000 को माइनस करें तो क्या बचेगा? जल्दी से हरी अप, थिंक एंड टेल मी। 2 lakhs? नो। 3 lakh? नो। 4 lakh minus 1,50,000? यस, 2,50,000 इज द आंसर। इतने पैसे उनको मोर चाहिए स्कूल को कंस्ट्रक्ट करने के लिए। क्लियर है? डाटा देख लीजिए। स्कूल नीड्स रुपीज़ फॉर न्यू बिल्डिंग 4 lakhs। मिस्टर अब्दुल्ला डोनेटेड 1,50,000। हाउ मच मोर मनी टू बी कलेक्टेड? कितने ज़्यादा पैसे और कलेक्ट करना है उनको? डिफरेंस निकाल लेंगे आप। रुपीज़ मस्ट बी कलेक्टेड फॉर अ न्यू बिल्डिंग। ओके, must be collected for a new building. Alhamdulillah, यहाँ तमाम questions complete हुए. I hope you have understood all these questions. Now your homework, what will you do? Solve all the word problems in your notebook. तमाम word problems को अपनी notebook में solve करें. Number 2, you must write each question in your notebook, not only solution. ये बड़ी शिकायत आती है कि बच्चे क्वेश्चंस को नोटबुक में नहीं उतारते हैं, सिर्फ सॉल्यूशन कर देते हैं, बाद में ढूंढते रहते हैं ये कौन सा सॉल्यूशन है किसका। ऐसा ये बिल्कुल रॉन्ग है। आपको क्वेश्चन उतारना है अपनी अच्छी राइटिंग, नीट राइटिंग में, देन पूरा सॉल्व करें, डाटा बनाएं, गिवन क्या है, फिर आप उसके बाद गिवन के बाद जो फाइंड आउट करना है वो लिखें और सॉल्यूशन करें और लास्ट में आंसर को लिखें। ओके, आई होप यू विल डू इन अ गुड मैनर। Jazakallah. You have to do this work within 3 days. Thanks for watching this video. Jazakallah. Assalamu alaikum.